انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حال ہی میں متحدہ عرب امارات، جسے عام طور پر یو اے بھی کہا جاتا ہے، کا اسرائیل کے ساتھ ایک اہم معاہدہ ہوا ہے جسے ابراہیم ایکورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک واضح فتح ہے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم شمعون کی مشرق وسطی کے ویژن کو چیلنج کیا ہے، جس کے مطابق اسرائیل کو کسی عرب ریاست سے تسلیم ہونے کے لیے اس کو کوئی خاص مراحل دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ مغربی کنارے یعنی ویسٹرن بینک کے ضمنی حصے پر اپنا حق ترک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ناظرین، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں ضروری ہے کہ ہم اسرائیل اور یو اے کے تعلقات کا مکمل جائزہ لیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اس معاہدے کا لب لباب کیا ہے اور اس معاہدے پر مسلم ملکوں سے کیا رد عمل آیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ اس میں جیت کس کی ہوئی۔ ناظرین، انقلاب ٹی وی کی طرف سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخرکار متحدہ عرب امارات کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس معاہدے کی مسلم امہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور مشرق وسطی کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ ناظرین، یہ یقینی طور پر اسرائیل کے لیے اچھی بات ہے کہ اردن کے ساتھ امن معاہدے کے 25 سال سے زیادہ کے بعد اسرائیل نے معاہدہ کر لیا ہے اور کسی اور عرب ریاست سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات باقی عرب ریاستوں کی طرح اب تک اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا تھا اور اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے اس ملک میں قانونی طور پر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ دونوں کے درمیان باضابطہ معاشی یا سفارتی تعلقات بھی نہیں تھے۔ ناظرین، سن 2010 میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے موساد پر محمود المبہوح کے قتل کا الزام عائد کرنے کے بعد تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ محمود المبہوح حماس کی ملٹری ونگ عزاء الدین القسام بریگیڈز کا شریک البانی تھا اور اس اسرائیل حکومت نے 1989 میں 2 اسرائیل فوجیوں کے اغوا اور قتل اور غزہ میں استعمال کے لیے ایران سے اسلحے کی خریداری کا الزام لگا رکھا تھا۔ ناظرین، نومبر 2015 کے آخر میں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اسرائیل کو ابوظہبی میں سفارتی دفتر کے قیام کی باضابطہ اجازت دے دی، اگرچہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں قدرے گرم جوشی پیدا ہوئی اور متحدہ عرب امارات نے بڑی حد تک اسرائیل کو بین الاقوامی کمپنی یعنی IRENA ایرینا میں اپنی رکنیت میں سہولت فراہم کرنے کی اجازت دے دی۔ دونوں ممالک کے عہدیداروں نے واضح کیا ہے کہ سفارتی دفتر اسرائیلی سفارتکاروں کو ایرینا کے لیے مستقل دفتر رکھنے کی اجازت دینے اور وہاں پر مقیم ہونے کا واحد مقصد ہے۔ ناظرین، نومبر 2016 کے پہلے ہفتے کے دوران اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینون نے اقوام متحدہ کی قانونی کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے عہدے کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا۔ عوامی مخالفت سے بچنے کے لیے ڈینن کا دورہ سخت حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا تھا۔ ناظرین، اکتوبر 2018 میں اسرائیل کی ثقافت اور کھیل کے وزیر میری ریجیو نے مکہ اور مدینہ میں مساجد کے بعد ایک اسرائیلی عہدیدار کے ذریعے ابوظہبی کے شیخ زاید جامع مسجد، جو مسلمان دنیا کا تیسرا سب سے بڑا عبادت گاہ ہے، کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ دارالحکومت میں منعقدہ جوڑو ٹورنامنٹ میں ساگی موکی نے طلائی تمغہ جیتنے کے بعد اسرائیل کا قومی ترانہ بجایا۔ تو متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران ریجیو نے ایک سنگ میل کو عبور کرنے کے تاثرات کا بھی مظاہرہ کیا۔ اتفاق سے ریجیو کے دورے کے فوراً بعد ہی اسرائیل کے مواصلات کے وزیر ایوب کارا ایک ٹیلی مواصلات کانفرنس کے لیے دبئی گئے۔ ناظرین، اسرائیل اور عرب ریاستوں کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں کے حصے کے طور پر وائٹ ہاؤس نے ایران کے خلاف کوارڈینیشن کے بارے میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 17 دسمبر 2019 کو ایک خفیہ سی فریقہ اجلاس کی میزبانی کی۔ کچھ دن بعد متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زاہد نے ایک مضمون ٹویٹ کیا جس کا عنوان تھا اسلام کی اصلاح ایک مشرق وسطی میں ایک عرب اسرائیلی اتحاد کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اگلے دن نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زاہد نے مشرق وسطی میں ایک نئے اتحاد کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک اسرائیلی عرب اتحاد۔ فروری 2019 میں امریکہ کی زیر قیادت ایران مخالف کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد ایران کے خلاف تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے 6 فریقی فورم امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات تشکیل دیا گیا۔ 2019 میں کم سے کم 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ ناظرین، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2020 میں دبئی میں ہونے والے ورلڈ ایکسپو میں حصہ لے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے جدت اور کاروباری صلاحیت کے ساتھ اپنے جذبات کو بانٹنے اور اسرائیل کی جدت پسندی اور مختلف شعبوں جیسے پانی، ادویات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعلق پیش کرنے کے مواقع کا خیر مقدم کیا ہے۔
23 फरवरी 2020 को एक इसराइली साइकिलिंग टीम दुबई पहुंची। दोनों ममालिक के माबैन गर्मजोशी का मुजाहरा किया गया। नाजरीन, इसराइल के लिए यूनाइटेड एयरवेज 19 मई 2020 को अपनी पहली उड़ान में इसराइल पहुंची। वो कोविड-19 का 14 टन तिबी सामान लेकर फलस्तीनियों को वबाई अमराज का मुकाबला करने में मदद फराहम करता था। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इस इमदाद को लेने से इनकार किया था क्योंकि ये इसराइल के तवस्सुत से आई थी। 9 जून 2020 को इतिहाद एयरलाइन का दूसरा त्यारा तिबी सामान की एक और खेप लेकर आया। पहली परवाज के बरक्स त्यारे में यूनाइटेड लोगो और मुत्तहिदा अरब इमारात के झंडे नजर आ रहे थे, जबकि फलस्तीनियन अथॉरिटी ने दोबारा शिकायत की कि ग़ज़ा की पट्टी में तकसीम के लिए ये सामान अक़वाम मुत्तहिदा को मुंतकिल किया जाना था। नाजरीन, इनक़िलाब टीवी की जानिब से आपको ये बताते चलें कि अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से 13 अगस्त 2020 को ड्रामाई और गैर मुतवक्के तौर पर मुश्तरका एलामिया में इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मुआहदे पर सदर डोनाल्ड ट्रंप, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अबू ज़ैबी के वली अहद शहज़ादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान 13 अगस्त 2020 को एक फ़ोन कॉल में इत्तेफाक किया गया था। नाजरीन, अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर इस मुआहदे में है क्या। इस मुआहदे के तहत इसराइल ने मगरबी किनारे के इलाकों पर खुद मुख्तारी का इतलाक मुअत्तल करने पर इत्तेफाक किया है, जिस पर वो इल्हाक के बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तीनों रहनुमाओं ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया है। इस मुआहदे में मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी रोकने के अलावा कोई बात नहीं की गई और जुमेरात को ट्रंप, नेतन्याहू और अबू ज़ैबी के वली अहद शहज़ादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद के माबैन एक फ़ोन कॉल में इस मुआहदे पर इत्तेफाक किया गया है। नाजरीन, यहाँ एक अहम सवाल ये है कि आखिर इसमें जीत किसकी हुई। नाजरीन, इसराइल एक अरसे से अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा था और इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक तो माशी फवायद हासिल किए जाएं, दूसरा अरब ममालिक को तुर्की और ईरान के खिलाफ तैयार किया जाए। अब जूं जूं अरब रियासतें इसराइल की गोद में बैठती जाएंगी, वैसे वैसे इसराइल खित्ते में एक ताकत बनकर उभरेगा और इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा जीत सिर्फ और सिर्फ इसराइल की हुई है, जबकि मुस्लिम ममालिक फिर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो गए। नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि जैसे ही इस मुआहदे पर इत्तेफाक हुआ तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से मिला जुला रद्द-ए-अमल आया और इस्लामिक वर्ल्ड 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। फलस्तीनी क़ियादत ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसकी मजम्मत भी की है, क्योंकि अरब इमारात ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है और फलस्तीन ने अपना सिफारतखाना बंद करने या कम अज कम सफीर वापस बुलाने का अंदिया दिया है। हिनान इसरावी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि आप कभी भी अपने मुल्क पर कब्जा होने की अजियत का तजिया ना करें, आप कभी भी कैद में रिहाइश पजीर रहने का दर्द महसूस नहीं करें, आप कभी भी अपने घर को घिराने या अपने प्यारों के कत्ल का मुशाहिदा ना करें, आपको कभी भी अपने दोस्तों के जरिए फरोख्त ना किया जाए। नाजरीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर मुहतात रद्द-ए-अमल देते हुए दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे के दूर रस्म ज़मरात होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा UN और OIC करारदादों और आलमी कवानीन के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की है। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ की मुकम्मल बहाली के लिए पुरज़म है। फ़लस्तीनियों के हकूक़ में इनकी खुद मुख्तारी का हक शामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ती में अमन व इस्तेकाम पाकिस्तान की अहम तरजीह है। नाजरीन, ईरान ने भी इस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदा स्ट्रेटेजिक हिमाकत और इनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात से मुकावमत कमज़ोर नहीं होगी। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम और दुनिया की तमाम आज़ाद अक़वाम इसराइल की गाज़िब और जालिम हुकूमत के साथ रवाबित नहीं रखेंगे और सेहूनी हुकूमत के आलाकारों को भी नहीं बख्शेंगे। ईरानी दफ्तर खारजा ने मजीद कहा है कि बिलाशुबा फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरजमीन और मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ रैगान नहीं जाएंगी। फ़लस्तीन आज़ाद होकर रहेगा। नाजरीन, दूसरी तरफ तुर्की के सदर ने कहा है कि तारीखी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इसराइल के साथ किसी मुआहदे पर मुत्तफ़िक होने पर मुत्तहिदा अरब इमारात के मुनाफिकाना सलूक को फरामोश नहीं करेगी और कभी भी माफ़ नहीं करेगी।
वजारत खारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम और इंतजामिया मुआहदे के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार करने के हक में थे। तारीख और खित्ते के अवाम का ज़मीर मुत्तहिदा अरब इमारात के इस मुनाफिकाना रवैये को फरामोश नहीं करेगा और इसे कभी माफ़ नहीं करेगा, और अपने मुख्तसर मुफादात की खातिर फ़लस्तीनी मकसद के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। नाज़रीन, ये इंतहाई तशवीशनाक है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने एकतरफा कार्रवाई के साथ अरब लीग के तैयार करदा 2002 अरब अमन मंसूबे को ख़त्म करने की कोशिश की है। तुर्की ने सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करने की धमकी दी है। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि इस्लाम का किला जिसको कहा जाता है वो सऊदी अरब अभी तक खामोश है, जबकि इर्दन और मिस्र ने इस मुआहदे को सराहा है और इसे खुशाइंद करार दिया है। ये तो था मुख्तसर अहवाल मुसलमान मुल्कों के रद्दअमल का। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके क्या नताइज मुरतब होंगे। नाज़रीन, ईरान और अरब ममालिक की दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक तवील अरसे से अरब ममालिक ईरान को खतरा समझते हैं और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा असला जमा करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इनके पास अपनी फ़ौज कुछ खास नहीं। यही वजह है कि अरब ममालिक ने फ़ौजी इत्तेहाद भी तश्कील देने की कोशिश की थी और इसमें ईरान शामिल नहीं था। अरब ममालिक और इसराइली ईरान दुश्मनी में एक सफ़ा पर हैं। यही इसकी सबसे बड़ी वजह है जो इनको करीब लाती है। मगर अब तुर्की का रवैया भी सख्त होता जा रहा है। तुर्की मुस्लिम ममालिक को यकजा करने और अरब ममालिक के तसल्लुत से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सबसे शदीद रद्दअमल तुर्की ने दिया है। अरब ममालिक के हरकत तुर्की, कतर और ईरान को करीब ला चुके हैं। अगरचे पाकिस्तान ने अभी तक खोलकर कोई साइड नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान को जल्द फैसला करना होगा कि वो अरब ममालिक के इस इत्तेहाद के साथ खड़ा होता है जो भारत, इसराइल और अमेरिका का पुटू है, या फिर ईरान, तुर्की, कतर और चाइना के ब्लॉक में खड़ा होता है। एक बात तो वाज़ेह है कि मुसलमान अब दो ब्लॉक में तकसीम हो चुके हैं जो उम्मत के लिए नुकसानदेह है। ताहम ये वाज़ेह है कि जीत इसराइल और अमेरिका की हुई जो उम्मत को तकसीम करने में कामयाब हो गए हैं। क्या इसके असरात मुरतब व वसी होंगे, ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन ये वाज़ेह है कि ये सब अच्छा है वाली सूरत हाल नहीं रही। नाज़रीन, आखिर में खुदा से दुआ है कि मुसलमानों को आप इसकी जंग से बचाए और यहूद और नसारा का इत्तेहादी बनने से बचाए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।